हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक वर्क्स पर। आपका अपने दोस्त सत्यम चौरसिया के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज बिहाइंड एवरी ऑफर, जहां हम जाएंगे उन लोगों के असली कहानी के पीछे जिन्होंने टॉप टेक कंपनीज क्रैक करी है। और हमारी पहले गेस्ट हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर निधीश शुक्ला। सो वेलकम निधीश। Yeah, thanks for having me, Satyam. And yeah, hello everyone. So I'm Nidish. I share the same college as Satyam, your host. So मैं भी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का पास आउट हूँ 2024 ग्रेजुएट एंड सेम कंप्यूटर साइंस बैच एंड right now I'm working in Arctic Wolf, cyber security startup. So Yeah, thank you. So can you please introduce your background from where you are, like that? so I'm natively from Gorakhpur itself, Gorakhpur, a town near Gorakhpur, Devariya. So हमारा कॉलेज वहीं पे था मदन मोहन मालवीय. So मतलब I'm a pass out from there, and हाँ, that's the background. Yeah, nice. So how many internship and full-time offer have you received till now from the college? So including on campus and off campus both, I think uh, I didn't get many internship chances. So internship, I think दो इंटर्नशिप ऑफर्स थे, एक ऑन कैंपस और एक ऑफ कैंपस. सो फॉर ऑफ कैंपस आई ऑफ कैंपस जो मिला था विच आई परस्यूड, ऑफिस बनाओ स्टार्टअप, एंड ऑन कैंपस जो था विच बिकॉज ऑफ सम क्लॉजेस आई रिजेक्टेड. so so that's about it. And full time offers as well, I think there were couple of offers, तीन चार ऑफर थे, बट सारे मतलब बहुत ऐसे ग्रेट ऑफर्स नहीं थे. So ultimately it's where I'm working that was the best among them, so I joined this. Yeah, that's nice. So you have cracked around more than four offer, right? Yeah. Yeah. So as the first important thing, like how did you get article opportunity from referral, LinkedIn, or career pages like that? Yeah, so not only like maybe इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द लेटर सेक्शंस, बट नॉट ओनली आर्टिक वुल्फ, इवन ऑफिस बनाओ और बहुत सारे ऑफर्स मुझे कोल्ड मेलिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है. तो मतलब cold mailing is something which I highly rate in this process of getting your offer. So khair, Arctic Wolf, to be honest, it was through a LinkedIn form. LinkedIn form was being circulated, and interesting part, I didn't even remembered after applying. So when the recruiter reached out, I was like, when did I apply into this? But yeah, so why I'm telling this information is that when you are like hunting jobs from a tier 3, like you have to be like uh, more than your preparation, you have to be absolutely mad in applying, like you can't rest there. So वो चीज अगर आप कर रहे हैं, then मतलब basically increase your chances. Yeah, right. वैसे So it's like कि so yeah. you have saying that मतलब कि randomly apply करते रहना चाहिए, कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाए नहीं पता। तो आप मतलब लिंक्डइन पे randomly अप्लाई करते रहते तो आप पूछते रहे, एक ऑफर मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। Yes. Yeah. So it तो was actually an on-site opportunity. So uh, they mailed me that. So I had 3 days window, and they mailed that Monday you have to be in Bangalore. I was in Delhi. मेरी इंटर्नशिप जहाँ पे थी, एंड 3-4 दिन का विंडो था, एंड आई वाज लाइक जाऊँ या नहीं जाऊँ. मतलब फर्स्ट राउंड में जाके रिजेक्ट हो गया और पता चला 15,000 की फ्लाइट ही थी. सो इट्स या इट वाज मतलब थोड़ा सा. तो दैट्स व्हाट आई मतलब ये जर्नी में इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सब बेट्स लेने पड़ेंगे. यू कांट ओवर थिंक कि मतलब कंपनी ने क्या मतलब होगा. कंपनसेट नहीं किया था क्या ट्रेवल का जो खर्चा था? That was not there because it was for on-site. So again, it was a even the opportunity was meant for on-site in the LinkedIn form itself. So बहुत सारे लोग शायद अगर अप्लाई करें तो वहीं पे छोड़ दें कि Yeah. अरे बैंगलोर जाना पड़ेगा. बट आई डिडंट यूज टू थिंक अबाउट दिस कि पहले आए तो फिर देखेंगे. Yeah, आई right. हैड That's दैट nice. माइंड. Yeah, बढ़िया। तो So what are the preparation strategy, मतलब कैसे आपने प्रिपेयर किया, क्या आपने देखा, कैसे चीजों को इंटरव्यू राउंड्स कैसे क्या चले? यार उस टाइम तो
मतलब DSA was in a good touch at that point. तो DSA was prepared and at that point मतलब मैं internship कर चुका था, मैं full time मतलब obviously PPO था, but apart from that I was looking for more full time offers. So उस टाइम पे मतलब मैंने रियलाइज किया कि वन डिफरेंस एटलीस्ट 24 से ही, और अभी तो वो डिफरेंस और प्रोमिनेंट है कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर फुल टाइम ऑफर्स, लाइक सिस्टम डिजाइन बेसिक ही सही बट दे टच अपॉन। सो मतलब वो एक बहुत सारे लोग को मिसकंसेप्शन होता है कि सिस्टम डिजाइन इज ओनली रिक्वायर्ड एट एक्सपीरियंस्ड लेवल्स, एटलीस्ट नाउ दैट हैज चेंज्ड। मतलब आपको बेसिक्स ही सही बट आने चाहिए। सो दैट Yeah, वाज समथिंग आई एडिशनल आई वाज डूइंग फॉर Arctic Wolf, मतलब व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स अराउंड दैट टाइम। And okay. DSA obviously I had. So Yeah, yeah. mostly these two, Yeah, I CS also fundamentals and obviously. yeah, I also experienced that system design is important nowadays. Yes. So, what's resources like how from balancing your job and preparing in 3 days for the company like Articolve? So, how you manage these things like that in that journey? यार आई वोंट से कि 3 दिन में प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर्ड तो ऑब्वियसली पहले से प्रिपरेशन थी, सो इट लाइक केम आउट। मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन तो किसी को नहीं दूंगा कि यू कैन प्रिपेयर इन अ वीक और 10 days। तो यू जस्ट रिमेन प्रिपेयर्ड, यू नेवर नो व्हेन द अपॉर्चुनिटी विल नॉक। सो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और बाकी उस टाइम पे मतलब डिफिकल्ट ये था कि जाऊं या नहीं जाऊं, वो थोड़ा एक डिसीजन थोड़ा सा था, बट अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो सो मतलब एक इम्पोर्टेंट ये है कि यार कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है हमें मतलब लाइफ में कुछ बड़ा पाने के लिए, राइट? दैट्स so ग्रेट। that is there. That is Yeah. there. So, how was your onboarding experience after selection like Articolve? How did your days going? Uh, onboarding was good यार। मतलब one thing, so there are multiple things, so this might not be true for all startups, लेकिन even though Arctic Wolf was a startup, it's already established in multiple other countries, right? So मेरे लिए थोड़ा चीजें काफी structured थी, मतलब इनके processes structured हैं, हर एक चीज के लिए documentation present था। तो Arctic Wolf में it was very very easy, मतलब फ्रॉम एवरीथिंग, बिकॉज जब चीजें कहीं भी आप जाओ अगर एक स्ट्रक्चर सेट है तो इजी होता है। Right, right. इफ यू आर इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप, जैसे मेरी इंटर्नशिप थी, वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट देन इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो यू रीच आउट टू योर बडी, योर मेंटर, एंड दे जैसे विल कि गाइड कंपनी में होता है ना कि आपने मतलब कितने राउंड टोटल थे इस इंटरव्यू में टोटल? यू। यार सो ऑन साइट था तो एट फर्स्ट मैं जब गया वहां पे तो एक पेन एंड पेपर राउंड था, विच हैड अ डीएसए क्वेश्चन विच वाज सरप्राइजिंगली इजी मीडियम, लाइक बहुत डिफिकल्ट नहीं था, वो अराउंड मीडियम लेवल था। देयर फोकस वाज ऑन सिस्टम डिजाइन। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पेन एंड पेपर राउंड में ही सिस्टम डिजाइन डाल दिया था कि एक्सप्लेन योर थॉट प्रोसेस। ओके, सो मतलब दैट वाज समथिंग। एक प्रॉब्लम दे दिया आपको, बोला कि इस पे आप एक्सप्लेन करो क्या सोचते हो फिर से इसका, राइट? यस या यस। ओके। मतलब एंड दैट वाज डीएसए से डिफरेंट है लाइक, मतलब एक सिंपल कोई कुछ फंक्शन या मेथड बनाने को दे दिया आपको टाइप का? Yeah, so actually DSA was quite simple, मतलब quite standard. So DSA I'm sure कि किसी ने भी अगर थोड़ा seriously किया है, they will do it. And system design was एक पूरा problem statement था, and they didn't say कि इसको design करो। They were like obviously because ये एक fresher role था तो ज़्यादा expectation नहीं थी, but उन्होंने कहा था कि जो जो तुम्हें सही approach क्या है वो छोड़ दो, जो जो तुम्हें लगता है कि अप्रोचेस यहाँ पे हो सकती हैं, दैट यू डिस्कस and according to you which you should choose. So basically they were focusing more on thought process, वो एक अच्छी चीज थी। नेक्स्ट राउंड इज? Then after that there were interviews, so there was a common panel, and for some, I think for some people there were 2 rounds, but for me there was a combined, like जो cultural, the person taking the cultural round as well was in a combined panel, so for me it was a combined round। बट And लाइक हायरिंग मैनेजर टेक्निकल प्लस एचआर? हाँ टेक्निकल प्लस, सो इन द टेक्निकल उन्होंने फोकस किया बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डीएसए पूछा, बट अगेन मतलब उनका फोकस था टू जज कि मैंने जो रिज्यूमे में लिखा है वो मैंने सच में किया है या नहीं, मतलब रियली गुड फॉलो अप्स, तो मतलब ये मतलब वो। तो आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने कि यार रिज्यूमे में जो भी चीज होता है, हायरिंग मैनेजर टेक्निकल जो फाइनल राउंड होते हैं ना, वहाँ फोकस किया था कि बंदा कितना ट्रस्ट वर्दी है यहाँ पर काम करने के लिए। सो वो इम्पोर्टेंट था, मतलब देयर दे रियली डिग्ड इनटू थिंग्स। तो एंड दैट्स वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मतलब उन्होंने मुझे फ्रीडम दे दी ऐसा कि व्हेन आई वेंट, सो दे सेड कि यू हैव मेंशन्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, पर्सनल एंड इंटर्नशिप, यू टेल मी विच यू नो द बेस्ट। सो ऐसा भी नहीं था कि इट वॉज वेरी वैसा कि बहुत डॉन्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था, बट उनका ये था कि भाई
तुम बताओ तुम्हें क्या आता है, बट यू बेटर नो इट, ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट ब्लफिंग। या तो तो इंटरव्यू मतलब आपके कहने के हिसाब से आपकी तरफ मोड़ दी। राइट। हाँ, तो हाउ। दैट इज, तो ये तो ऑन साइट राउंड थे, एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ एचआर राउंड व्हिच वाज रिमोट। सो ये सब एक दिन में हुआ, आफ्टर दैट आई केम बैक नेक्स्ट डे, देयर वाज एचआर राउंड, बट that was not, I don't think that was eliminatory. So So what the usual CTC or base range that Arctic Wolf offer to freshers? we are freshers, they don't negotiate much until you have competing offers, so they have a fixed, and since it's fixed I can't tell the number, but it's mostly around, like you can research, is mostly around fang. So fang range, like mostly how it's, you can assume 20 to 30 sort of a range, so you can consider that. So Yeah, it's a great because including 20 to including 30, everything, like yeah, 20 to 30 yeah, range of the base salary is much high. But yeah, it's like a FANG level. yeah, yeah, yeah. And not only telling about base, like there are some other benefits as well. So yeah. Any other special benefit that Arctic Wolf offer? uh it's not specific to Arctic Wolf, like in this I really like, matlab some other companies follows this too, like Google bhi I think follow karti hai ki the employer's contribution is not deducted from your CTC, which I really like normally ऐसा होता है कि दोनों contribution आपके base से कट रहे होते हैं, that is Okay. not the case here. So that is there. Apart from that, yeah, like usual stuff, the bonus etc, which is everywhere. So bonus is there, you get a snacks allowance of I think some 1300 rupees per month. So yeah, That's great. सो yeah. इसने इतना कुछ करा तो इतना करने के पीछे एक जर्नी होती है, तो हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग से जहाँ इन्होंने शुरू किया था अपनी जर्नी को, कॉलेज लाइफ से। सो निधीश, हाउ वेयर योर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इन कॉलेज, व्हाट यू एक्सप्लोर इन द कॉलेज लाइक? यार फर्स्ट ईयर तो जस्ट चला गया कोविड में। सो फर्स्ट ईयर वाज, इट वाज अ लेट स्टार्ट फॉर अस, मतलब अराउंड नवंबर दिसंबर आई गेस। और तो बाय दिसंबर इट्स ऑल यूजुअल कैलेंडर में आपका एक सेमेस्टर जा चुका होता है, दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड। सो फर्स्ट ईयर तो उतना कुछ हुआ नहीं, आई थिंक 5-6 महीने में फर्स्ट ईयर रैप अप हो गया, पता भी नहीं चला, वो भी घर घर पे ही था। And I think the real journey started from second year. So for me, like I was one of the late starters. मतलब पता नहीं, कुछ लोगों को अर्ली लगेगा, कुछ को लेट लगेगा, बट यूजुअली लोग फर्स्ट ईयर से सीरियस होते हैं। एटलीस्ट मतलब हमारे कॉलेज में तो कल्चर थोड़ा ठीक है, मतलब कि जो सीरियस होते हैं वो फर्स्ट ईयर से होते हैं। तो तो दैट वे आई थिंक आई वाज लिटिल लेट, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया। आई ओनली न्यू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी तो बहुत अच्छे से नहीं। अच्छा, आपने मतलब एंड स्पोर्ट्स में सेकेंड कोई स्टार्ट, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी कोई या फिर कोई ऐसे क्लब फन समथिंग लाइक दैट यू हैव ज्वाइन एंड एक्सप्लोर? उस मामले में तो यार मैं थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हूँ, तो आई डेंट ज्वाइन मच। मैंने एक क्लब ज्वाइन किया था, देयर आई वाज इन्वॉल्वड इन लिटिल बिट ऑफ, लाइक क्लब के लिए आपको वेबसाइट्स वगैरह बनानी होती है ना, सो देयर वाज अ क्लब, आई ट्रिपल ई रन क्लब, सो वहां पे आई वाज देयर फॉर सम टाइम। आई कंट्रीब्यूटेड लिटिल बिट इन देयर वेबसाइट्स एक्सेट्रा, बट देन इवेंचुअली लगा कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, तो फिर ज्यादा किया नहीं कुछ। तो द इम्पोर्टेंट थिंग मतलब कि आपने कोडिंग का कब स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, मतलब अर्ली चैलेंजेस क्या थे आपकी? सो हाँ, मैं स्टार्ट किया सेकेंड ईयर में। उस टाइम पे मतलब इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ लाइक कंपेनियन, अगर आप अकेले अकेले करोगे तो मे बी यू कैन गेट डीमोटिवेटेड। सो सेकेंड ईयर में तो आई थॉट कि लाइक सबको सब कुछ आता है, एंड अभी तो बात गड़बड़ हो गई है, थोड़ा पीछे रह गए वैसा वाला। तो दैट्स व्हेन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, एक और मेरा दोस्त था, ही वाज एट द सेम स्टेज, मतलब स्टार्ट ही कर रहा था, तो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड। एंड मेरी जर्नी थोड़ी अलग थी, कि मतलब मैंने स्टार्ट ही कर दिया एक, मतलब थोड़ी बहुत जब मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई लूप्स चलाने, मैं सीधे कोडशेफ कॉन्टेस्ट से स्टार्ट कर दिया। सो आई थिंक वो एक अच्छी चीज हुई, बिकॉज अगर एक स्ट्रक्चर से पढ़ते हो तो शायद डिमोटिवेट हो भी जाते हो। जब कॉन्टेस्ट दे दे के कर रहे हो तो हर बार रेटिंग ऊपर नीचे जा रही है, तो थोड़ा एडेड मोटिवेशन होता है कि भाई ये इम्प्रूव कर। जब तक अब बाइनरी, हमेशा बाइनरी सर्च पे अटक रहा हूँ, जब तक ये पढ़ूंगा नहीं ये रेटिंग नीचे ही जाती रहेगी, तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन फिर एडेड हो जाता है। तो आई थिंक दैट वाज वन गुड थिंग, कि मतलब मैंने ज्यादा वो सोचा नहीं, परफेक्शन का वेट नहीं किया कि सब सीख लूंगा तब कॉन्टेस्ट दूंगा। सो दैट या रियली हेल्प। तो इसका मतलब ये कि मतलब हर चीज आप सीख करके स्टार्ट नहीं करते हैं, आपको सीखते हुए चलते रहना है, मतलब चलते हुए सीखते रहो धीरे धीरे।
Right. Yeah, So, obviously. which platform did you use for this TSA, CP, and when you start like Coursera, Coursera, Lead Code? या सो स्टार्टिंग तो यार कोडशेफ की थी, क्योंकि उस टाइम पे, अभी तो कोडशेफ ने बंद कर दिया था, उस टाइम पे लॉन्ग चैलेंजेस हुआ करते थे। तो मतलब वो बिगिनर के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन रहता था कि चलो टाइम नहीं टिक हो रहा। बट स्टार्ट होते ही आई रियलाइज्ड कि लॉन्ग चैलेंजेस मतलब शायद उतने फ्रूटफुल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्ली दे स्क्रेप्ड इट एज वेल। तो फिर मैंने मतलब टाइम बाउंड देना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज लॉन्ग में फिर वो डिसिप्लिन नहीं आता कि एक कर रहे हो। तो फिर मैंने शॉर्ट चैलेंजेस स्टार्टेड मतलब विद कोड शेफ। फिर इवेंचुअली साइड साइड में थोड़ा बहुत जीएफजी वगैरह करते थे, बट उतना नहीं। तो मतलब आइडियली आई वुड से कि इंसान को इधर जीएफजी या लीड कोड और एक सीपी प्लेटफॉर्म दोनों पे साथ साथ में करना चाहिए, क्योंकि एक से आप एल्गोरिथम सीखते हो, एक से टेक्निक्स और ग्रीडी वगैरह सीखते हो। मैंने अपने केस में वो चीज़ थोड़ा लेट की। मैं मतलब शुरू में बस सीपी था, तो मैंने स्टार्ट किया कोडशेफ से। इवेंचुअली 3-4 महीने बाद मैं पूरी तरह से कोड फोर्सेस शिफ्ट हो गया, और मैंने कोड फोर्सेस ही किया बहुत टाइम तक। बट उसके बाद लगा कि नहीं भाई, सिर्फ इससे नहीं होगा, लीड कोड इज गोट, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर लीड कोड पे आए, एंड या तो मतलब मेजरली मैंने ज्यादातर तो कोड शेफ, कोड फोर्सेस और लीड कोड ही किया है। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है ना कि डीएससी में आपकी स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए हाँ वो स्टैंडर्ड तो वेबसाइट चाहिए, लीड कोड या फिर जीएफजी जैसे। लेकिन अगर बात की कम्पिटेटिव कॉन्टेस्ट की, तो उसके लिए आपको थॉट प्रोसेस जनरेट करने हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन वो ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे नहीं जाएगा ज्यादा ज्यादातर। मतलब या स्टैंडर्ड मतलब इधर एल्गोरिथम की तरफ जाएगा वो यस, ज्यादा। इसीलिए दोनों में से बेस्ट इज कि आप दोनों में से एक एक करो। या मतलब एक कहीं सीपी करते रहो, एक आप मतलब लीड कोड या जीएफजी तो करना ही करना है। मेरे केस में थोड़ा उल्टा था, बट इवेंचुअली मैंने वो करेक्ट कर लिया। तो आगे पीछे लिखा हो, लेकिन करना तो दोनों है। राइट। या तो बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, अब मैंने भी किया था। मतलब कि क्या होता है कि टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना बार बार नहीं हो पाता है। तो ये चीज काफी मतलब एनोइंग होती है स्टूडेंट के लिए। यार उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो आई थिंक लीड कोड वगैरह में भी उन्होंने टाइमर का वो फीचर्स दे दिए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट उससे आप डिसिप्लिन शायद बना नहीं पाओगे। तो मेरे केस में तो मतलब आपको हर क्वेश्चन का आंसर घूम फिर के कॉन्टेस्ट ही मिलेगा। तो मेरी जर्नी में तो वही रहा है। तो मैं तो बोलूंगा लाइक बी वेरी वेरी डिसिप्लिन विद कॉन्टेस्ट। मतलब कॉन्टेस्ट आप दे रहे हो, अल्टीमेटली आपको एक टाइम मतलब ऑटोमेटिकली आपने टाइम बाउंड सिचुएशन में खुद को बांध लिया है। और सिंस रेटिंग फ्लक्चुएट होती है रियल टाइम में ना, तो वो भी लगता है कि यार ज्यादा गिर गई तो रेज्यूमे पे खराब लगेगा। तो अपने आप एक एडेड मोटिवेशन होता है। तो फॉर मी मतलब आई विल से कि कॉन्टेस्ट दो, अल्टीमेटली ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, चीजों को करते करते टाइम राइट। लिमिट में कर पाना। तो क्या रूटीन होता था मतलब आपको डीएसए मॉर्निंग में, इवनिंग में सीपी करने का, या फिर कुछ और प्रैक्टिस डेवलपमेंट का? यार इतना डिसिप्लिन तो मैं था नहीं। तो पर रूटीन ये था कि यार जनरली जब मैं डीएसए करता था, तो मतलब डीएसए ही करता था। मतलब मैं वैसा था कि एक चीज पकड़ता था उसको करता था। मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसा चीजों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। आई डोंट नो करेक्ट और रॉन्ग, बट मैं जब डीएसए करता था तो डीएसए ही करता था। जब मैंने फिर डेव स्टार्ट किया तो मेरा डीएसए छूट ही गया, फिर मैं डेव ही कर रहा था। फिर जब लगा कि अरे नहीं टच छूट गया है, तो वापस डीएसए ही कर रहा हूँ। सो वैसा था यार। पर हाँ, रूटीन ये था इन जनरल कि कॉन्टेस्ट तो देने ही है। मतलब मेरी प्रोफाइल भी अगर कोड फोर्सेस की दोगे तो 1-2 साल तक आई थिंक हार्डली मैंने कोई कॉन्टेस्ट स्किप किया है। मतलब रेयरली। मतलब मैं आई कैन गारंटी कि एटलीस्ट उस जोन में जितने 80% कॉन्टेस्ट हुए होंगे फॉर माई रेटिंग रेंज, मैंने सारे दिए होंगे। तो वो मेन रूटीन वही था। उसके अराउंड उसके लिए जो सीखना है, जो अब्सॉल्व करने में लगेगा, जो मतलब पूरी स्ट्रेटजी कॉन्टेस्ट ड्रिवन थी समहाउ, बस हो गई। बट मेरा वही था कि कॉन्टेस्ट तो पक्का देना है, उसके अलावा जो सीखना है, अब्सॉल्व करना है, वो दिन में करता था। यानी कि मेन चीज पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर आप कर रहे हो कोडिंग, फिर कॉन्टेस्ट दे रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, फेस करते हो, फिर सॉल्व करते हो, तो आप ग्रो करते हो। राइट। करेक्ट बढ़िया। करेक्ट। या नाइस। तो हाउ डू यू मैनेज लाइक कॉलेज एग्जाम्स एंड classes, and and also doing CP, DSA, right? How you manage it? आई कुडंट मैनेज सिंपली। सो मेरे तो कोई बहुत अच्छे नंबर थे नहीं, तुम्हें पता ही है। सो आई मेंटेन्ड अ बेयर मिनिमम ऑफ 7.5। सो मतलब ऑब्वियसली उससे नीचे नहीं गया मैं। बट मैं वैसा 8 पॉइंटर या 8.5 पॉइंटर भी नहीं था। मतलब इवेंचुअली माई सीपीयू सीजीपीए वाज 7.7। सो उससे ये तो पता है कि मतलब पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सो इनफैक्ट मतलब आई रिमेम्बर कि मतलब हमारे यू विल रिलेट। मतलब वो एक
हमारा एक सब्जेक्ट होता था डीएसए, उसके प्रोफेसर थोड़े तो स्ट्रिक्ट थे, तो उसके एग्जाम के पहले आई वाज लाइक, एक दिन पहले कॉन्टेस्ट था, मैं कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ कि अरे भाड़ में जाए, फिर उसके बाद रात में थोड़ी उसमें कि अरे भाई अब कल क्या होगा, बैग ना आ जाए, तो दोस्तों के फिर पैर पकड़ रहे हैं, भाई पढ़ा दे पढ़ा दे। सो मेरा तो वो था एग्जाम से पहले की, कॉलेज तो ऐसे था कि दो चार दोस्त थे उनको ही पकड़ के कि भाई क्या करना है। मुझे लास्ट दिन बताते थे लोग कि भाई ये वाला असाइनमेंट का डेट था, बीत गया। अच्छा बीत गया, तो चलो अब करते हैं। सो वैसा वाला था यार। तो मतलब ये था तो कि मैंने मेरा आपका पूरा पूरा यही था। फोकस आपका मतलब अपने हिसाब से कि डीएससीसीपी करते थे, बाकी दोस्त हेल्पफुल थे आपके काफी, कि मतलब चीजों को मैनेज हाँ कर हाँ, लेते थे। तो वो करा देते थे, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ऐसा करना, बिकॉज सीजीपीए चाहे जो जो कहे इज इम्पोर्टेंट, तो मतलब आपकी जर्नी आसान हो जाएगी बेसिकली। वही वाली बात है कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ा लोगे इस तरह से। अगर आपका सीजीपीए कम है तो स्किल है, इवेंचुअली यू लैंड समथिंग, लेकिन वही है कि फिर आपका बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी भी नहीं। सो इट्स बेटर कि सीजीपीए अच्छा रखो। सो या इतना वो, इतना भी वो फैंटम नहीं बनना है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इन्होंने मतलब डीएससी काफी करा था, अच्छा करा था। तो इसके बाद शुरू करते हैं इनकी जर्नी, फर्स्ट पहली जर्नी को। तो आपकी पहली इंटर्नशिप क्या कहाँ मिली थी आपको, और मतलब क्या था उसका प्रोसेस है समथिंग? यार तो पहली इंटर्नशिप तो, टेक्निकली जो पहली इंटर्नशिप थी वो तो मतलब टेक ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्नशिप नहीं थी वो तो, ऐसे एज अ ट्यूटर वाली इंटर्नशिप थी, मतलब टीचिंग असिस्टेंट। सो एट दैट पॉइंट मेरे को आती थी डीएसए अच्छी अच्छी, और वहां पे भी मतलब कभी कभी होते थे, तो मेरे को लगा चल यहाँ से तो मतलब एटलीस्ट मैं डीएसए के टच में थोड़ा थोड़ा रहूंगा, और मतलब चीजें ठीक है। एंड दैट वाज माय थर्ड ईयर एंड आई थिंक 6 सेमेस्टर। तो और उस टाइम तक मेरा एक बहुत बड़ा वीक एरिया था कि मुझे डेव बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब प्रोजेक्ट्स भी रेज्यूमे पे चिपकाए हुए थे वो। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था, और वो चीज मैंने एक दो इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर समझ भी लिया कि ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर दैट्स व्हेन आई शिफ्टेड टू डेव, और मतलब ज्यादा डीएसए करने के बाद भी आई एल से कि डेव बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर टीयर 3 पीपल। तो वहां पे फिर डेव किया, और डेव किया तो फिर थोड़ा बहुत किया, और फिर वहां से वैसा था कि मैं वैसे ही स्टार्टअप्स पे अप्लाई करने लगा जो असाइनमेंट बेस्ड थे, मतलब डीएसए वाले तो करते ही थे। असाइनमेंट बेस पे क्या, बिकॉज वहां पे कॉल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कोई असाइनमेंट देता ही नहीं। और वहां से कोल्ड मेलिंग वगैरह, तो बहुत टाइम तक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, पूरा 7 सेमेस्टर जस्ट चला गया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मेरे को लगा चलो ठीक है कोई नहीं, टीसीएस वीसीएस कुछ पकड़ लेंगे। सो अल्टीमेटली फिर 8 सेमेस्टर के स्टार्टिंग में अगेन, और फर्स्ट इंटर्नशिप मेरी अगेन कोल्ड मेलिंग से लगी है, तो इसीलिए मैंने बोला था आई डिस्कस दिस इन लेटर पार्ट, क्योंकि कोल्ड मेलिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया है। बिकॉज फर्स्ट फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है। उसके बिना मतलब वहां पे आप बहुत कुछ सीखते हो, थोड़ा इवॉल्व हो जाते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं एटलीस्ट टीयर 3 के लिए। तो वहां पे फिर वो पहला तो कोल्ड मेलिंग से आया अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद फिर वो हमने उसका असाइनमेंट किया, फिर वो सबमिट किया, कॉल आया, इंटरव्यू राउंड्स भी ठीक ठीक थे। तो वो सब निकल, बिकॉज उस टाइम तक डेव आती थी, तो उतना वो नहीं था कि क्या पूछ लेगा। उससे पहले जब आपने प्रोजेक्ट चिपकाए हैं तो आपको वो अलग डर रहता है कि डीएसए तो बता लेंगे, इसमें क्या बताएंगे। ठीक है, तो तो मतलब आप वो चीजें हुई। वहाँ पर आप ट्यूटर थे डीएससी के, हाँ। सो डाटा स्ट्रक्चर, फिर तो मतलब वहाँ पर काफी आपकी हेल्प हो गई, मतलब एकदम ग्रो हो गया अच्छे से, चीजें प्रोसेस हाँ, पूरी वैसे मतलब। ये इंटर्नशिप मैंने दूसरी जगह की थी, मतलब सेम सेम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जहाँ पे ट्यूटर था। तो अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर तो मतलब ये जो ऑफिस बना हो, मतलब मेरे लिंक्डइन पे भी है, सो ये वहाँ का असाइनमेंट आया, वहाँ मैंने किया, और फिर इंटरव्यू राउंड्स आए, आई थिंक 2 या 3 इंटरव्यू राउंड्स थे। एंड फिर हाँ उसके बाद दे टोल्ड मी कि यू आर सेलेक्टेड। सो आई थिंक इन इन मिड 8th सेमेस्टर मेरे को पहली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्नशिप मिली, मतलब डीएसए ट्यूटर वाली तो थी, पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पहली तब मिली। और अगेन वहां भी वो थोड़ा सा रिस्क वाली बात आ जाती है कि वहां भी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज स्टाइपेंड उसका बहुत ज्यादा नहीं था। तो वहां भी ऐसा था कि आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चों को अगर वो अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ये सोच के छोड़ देंगे यार इतने में मैं दूसरी सिटी में जाके रहूंगा कैसे। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टार्टअप है जहां पे आपको सीनियर्स हैं गाइड करने के लिए, अब ऐसा नहीं कि 4-5 लोगों का है, आप ही फाउंडिंग इंजीनियर हो, वहां पे तो इंटर्नशिप फिर मत करो मे बी। बट जहाँ पे आपको सीनियर्स हैं गाइड करने के लिए, दैट्स ग्रेट, मतलब जाओ सीखो चीजों को, मतलब लॉस क्या है, पैसे यही ना है तुम्हारी जेब से कुछ लग जाएंगे। ये सो सबसे इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए कि यार कॉलेज में जाकर अगर कोई इंटर्नशिप मिल जाती है ना, तो वो आपकी कैरियर के लिए जो मतलब स्टार्ट पॉइंट हो जाता है कि आप अब इसके बाद स्टार्ट करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप अनएक्सपीरियंस रह गए, कुछ आप जानते नहीं हो चीजों के बारे में।
इंडस्ट्री के सो बारे में। वो था। और फिर हाँ, वो करते करते फिर मतलब मुझे भी रियलाइज हुआ कि चीजें सीख रहा हूँ तो मतलब। और ना एक एक और बहुत अंडररेटेड चीज है कि मतलब सबको पता है कि डेव करना है और डीएसए करना है, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ मतलब कि इट्स वेरी हार्ड कि ऐसे लोग ढूंढ पाओ जिन्होंने दोनों किया है, मतलब जिन्होंने बैलेंस करके रखा है। मतलब या तो डेव ही किया है या तो डीएसए ही किया है। तो मतलब मुझे तो अल्टीमेटली लगता है इफ यू मतलब तुमने दोनों अगर ठीक ठीक लेवल पे कर लिया यू विल इजीली गेट इट। मतलब दोनों कर लिया और साथ में तुमको मतलब कम्युनिकेशन अच्छी है, यू आर लाइक मैड इन अप्लाइंग। तो ये तो पॉइंट ये सारी आपने चीजें सही अगर बोला सीख एकदम, लो तो काफी। you can अगर do it. आप डीएसए बस करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो आप अच्छे जगह पहुंच जाओगे। अगर आप डेव करोगे, डीएसए करोगे, तो चांस बिल्कुल ज्यादा कि पहुंचोगे पहुंचोगे। और आप बस डेव हाँ करोगे, डीएसए नहीं करोगे, तो आपको मीडियम रेंज में रह जाओगे, मतलब क्योंकि टॉप कंपनीज विदाउट डीएसए नहीं लेंगी वो। हाँ, तो दैट्स ये ट्रू, एक चलता दैट्स है। ट्रू। ठीक है, फाइन। तो So, how was your on-campus placement? Like, what offers you get in on-campus and like something? यार ऑन कैंपस में तो फिर आई टोल्ड ना कि एक इंटर्नशिप ऑफर था बट आई रिजेक्टेड। तो ऑन कैंपस एक था, एक कंपनी थी, आई वोंट टेक नेम, बट उसके क्लॉजेस कुछ अजीब ही थे। तो I know. uh, हाँ, तुम्हें भी मिला था आई थिंक। तो अल्टीमेटली वो रिजेक्ट किया और उसके बाद फिर तो ऑन कैंपस में अलग ही सीन हो गया। तो उन्होंने बोला कि यू हैव ऑलरेडी गॉट द ऑफर्स, वी विल ब्लॉक यू, क्योंकि तुमने रिजेक्ट किया। मैंने कहा भाई जो क्लॉजेस तुम अब बता रहे हो दैट आई डिडंट न्यू। सो Right. वो सब बैक एंड फोर्थ। फिर मतलब आर टीपीओ वाज लिटिल सपोर्टिव, मतलब वो काफी अच्छे थे। तो आई आई टॉक्ड विद माय टीपीओ, मतलब जो प्रोफेसर थे, तो ही कंसीडर्ड। फिर उन्होंने मतलब मुझे अलाउ किया, बट तब तक एक दो कंपनी आके जा चुकी थी। सर्विस बेस्ड ही थी बट जा चुकी थी। उस टाइम लग रहा था अरे यार अब तो क्या ही है। सो ऑन कैंपस तो यार एक वही क्रैक किया था मैंने। उसके बाद एक और आई थिंक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, सो दैट आई क्रैक्ड। अगेन पैकेज बहुत अच्छा नहीं था बट हाँ उस टाइम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो कुछ तो है, मे बी बेरोजगार नहीं जा रहे। सो दैट्स द ओनली टू ऑफर्स आई क्रैक्ड। उसके अलावा तो मैं सब में रिजेक्ट ही हुआ हूँ यार ऑन कैंपस फॉर सम रीजन। हर जगह या तो कंसीडर नहीं करते थे, या तो सीजीपीए में जाता था, या तो कहीं खुद में सब कर देता था। तो वो तो ऑन तो कैंपस तो मतलब बहुत बहुत अच्छा अच्छी एक्सपीरियंस था। अच्छी पूरे फाइनल ईयर में जब हम प्लेसमेंट के सीजन में होते हैं यार, पूरा वो माहौल जो होता है ना कि यहाँ रिजेक्ट हुए, यहाँ यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुए, यहाँ पर तो मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली सीजीपीए की वजह से, एकदम फ्रस्ट्रेटिंग Yeah. होता है। लेकिन अगर कहीं एक बार कुछ मिल जाता है किसी बंदे को ना पूरे ईयर के दौरान, वहाँ उसका एक स्टेबल पॉइंट बन जाता है। उसके बाद वो आराम से अचीव कर पाता है कि उसको नेक्स्ट टारगेट क्या करना है। Yeah. दैट्स ग्रेट। So तो नाउ द नेक्स्ट, ऑफ कैंपस में आपने मतलब टोटल क्या क्या का सीरीज रहा, मतलब कैसे ऑफर्स है, कॉलेज इंटर्नशिप से वन बाय वन सीरीज मतलब। सो यार ऑफ कैंपस पहला तो था ये जो डीएसए ट्यूटर, सो हाँ, दैट वाज देयर। एंड उसके सेकंड बाद सेकंड ऑफ कैंपस वाज, सेकंड ऑफ कैंपस यही इंटर्नशिप ही थी विच आई ज्वाइंट। सो ऑफिस वो बनाओ। था फिर वहाँ पे। हाँ ऑफिस बनाओ, फिर वहाँ पे मुझे पीपीओ मिला, सो दैट वाज द फुल टाइम ऑफर। फिर वो पीपीओ मिलने से पहले एक पुणे की स्टार्टअप है आई थिंक, हमिंग बर्ड। सो या दैट आई क्रैक्ड अगेन ऑफ कैंपस। बट उस टाइम तक मतलब मैं करंट ऑर्गेनाइजेशन जान गया था जहाँ पे मैं था, पीपीओ था वहाँ पे, और मुझे पता था सीनियर्स अच्छे हैं। तो वो था मतलब कहीं नई जगह जा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं था कि मतलब लर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। दूसरे जो जो नई जगह पे जा रहा था वहाँ मतलब पुणे वाले ऑफर में द प्राइमरी टेक स्टैक वाज पीएचपी। तो मैं थोड़ा सा उस पर भी मतलब डाउटफुल था। पीएचपी में भी स्कोप है बट अगेन मैं चाहता था कि जिस पे कर रहा हूँ ज़्यादा पसंद था, तो मैं कहा कि लेट्स स्टिक हियर। सो वो था। उसके बाद फाइनली बीच में सूखा ही पड़ गया। फिर बीच में जीएफजी आया था, आई थिंक आई वेंट टिल द लास्ट राउंड। पर लास्ट राउंड में आई थिंक एक बहुत छोटी चीज पे मैं रिजेक्ट हुआ। मतलब मैंने ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एक चीज लिखी हुई थी, एक हैकाथॉन का फाइनलिस्ट, और विच मतलब मैं था, पर फिर भी मतलब मैंने उस पर कभी उतना प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि हैकाथॉन में ऑब्वियसली टीम होती है, बहुत सारी चीजें लोगों ने अलग अलग लोगों ने करी है। तो थोड़ा आपको वो भी प्रिपेयर करना होता है। वहां पे उसने पूछना स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सोच सोच के जवाब दे रहा हूँ कि अच्छा उसने ये किया था, नहीं नहीं उसने ये किया था। तो आई थिंक मतलब हायरिंग मैनेजर को ये लगा कि ही इज जस्ट ब्लफिंग। तो प्रोबेबली उस वजह से रिजेक्ट हुआ। उस टाइम लगा अरे यार यहाँ तक आके फिर चले गए।
तो GFG, बट दैट वाज क्लोज। तो और उसके बाद फिर आई थिंक लास्ट ओनली 2 ऑफर्स, आई थिंक एक जोमेटो से था एंड एक यहाँ से था, सो एक जोमेटो का आर्टिक वुल्फ। मतलब जोमेटो का क्या प्रोसेस था मतलब? जोमेटो इज वो तो रेफरल बेस्ड होता है मोस्टली, और भी होते हैं बट मेरा भी रेफरल बेस्ड ही था, सो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी एंड वो तो डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं। मेरे लिए आर्टिक वुल्फ में एक चीज बेनिफिट ये हुई कि मतलब जोमेटो के इंटरव्यू शेड्यूल्ड थे, तो आई न्यू कि जोमेटो सिस्टम डिजाइन पूछता है, तो Right. मैं सिस्टम डिजाइन थोड़ा पढ़ रहा था, सो दैट्स व्हाई मतलब आर्टिक वुल्फ आई थिंक आई क्रैक्ड, अदरवाइज तो पॉसिबल ही मतलब नहीं था। ये मतलब सिनेरियो तो काफी मतलब बहुत मतलब कॉमन चीज है ये चीज, मतलब बताना चाहूंगा कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो एक चीज के लिए, अगर नहीं भी होता है तो वो लर्निंग आपकी ऑटोमेटिक नेक्स्ट इंटरव्यू या फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें हो जाती है। मैंने मीशो का दिया था, तो मीशो में सिस्टम डिजाइन था, मैं आसानी से उसके बाद कहीं भी जाता था सिस्टम में मोस्टली चीजें मैं कर लूंगा। मैंने उसकी वजह से भी क्रैक किया था क्विजेस। तो ये काफी लर्निंग चीज है कि आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो डोंट थिंक कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। थिंक करो कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट में तो ये मेरे को इम्प्रूव कर ही रहा है। Right. सही है। सो यार यही थे, तो मतलब बहुत सारे ऑफर्स तो नहीं क्रैक किए, मैं तो हर जगह रिजेक्ट ही होता था यार, फाइनल 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 राउंड में जाके रिजेक्ट होता था, फिर सोचता था अबे इसमें क्या गलत हो गया अब। सो रिजेक्शंस तो की लिस्ट बहुत लंबी है, सेलेक्ट तो एक दो जगह ही हुआ है। ये तो है, मतलब स्ट्रगल और रिजेक्शन तो काफी रहते हैं, मतलब डिमोटिवेटिंग आता है फिर कुछ रहता है सपोर्टिंग। तो मतलब क्या बताना चाहोगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को फोकस कैसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर को या सेकेंड ईयर को क्या चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए? यार मतलब इन शॉर्ट चीजें जो एक्सप्लोर करनी है वो ये है कि आपको DSA करना है, CP करना चाहो, मतलब आई विल से कि कर लो, हेल्प करती है, फॉर श्योर हेल्प करती है। तो बट हाँ वहाँ बहुत डिबेट है कि मतलब मुझे नहीं पसंद क्या करना है, तो मतलब ऐसा नहीं, मतलब CP रिक्वायर्ड नहीं है इन दी एंड, आपको चाहिए लीड कोड ही, मतलब अगर आप स्टैंडर्ड कर पा रहे हो एक अच्छे लेवल पे, मीडियम हार्ड भी, तो यू विल सक्सीड। तो DSA तो पक्का चाहिए। CPI से प्रेफरेबली अगर कर पाओ तो OA में बहुत हेल्प होती है, तो CP करो एंड डेव तो ज़रूर करो, बिकॉज मतलब वो पहले ऑफर्स पहले इंटर्नशिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ये भी डेव रिलेटेड है, जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो वो तो अच्छे से करो, मतलब रिज्यूमे पे एक एक शब्द जो लिखा है आपको पता होना चाहिए। और तो ऐसा नहीं है कि मतलब रिएक्ट लिख दिया तो रिएक्ट के मैंने 2 हुक यूज किए हैं तो मुझे 2 ही पता है, नहीं भाई, रिएक्ट लिखा है तो फिर रिएक्ट में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चीजें हैं सब पता होनी चाहिए आपको। राइट राइट। तो तो कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर को मतलब फोकस करना चाहिए कि वो स्टार्ट करे प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से और सीपी की हाँ तरफ जाएं, क्योंकि अगर टॉप कंपनी में जाना है तो ओए तो देना पड़ेगा और डीएससी राउंड्स आएंगे, तो और क्वेश्चन अगर सीपी आपको आती है तो आपके अच्छे से क्रैक अर्ली हो जाएगी। स्टार्टअप, अर्ली स्टार्टअप बेटर है अगर DSS CP से करें, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेगा। डेव कंपेरेटिवली थोड़े कम टाइम में हो जाता है, मतलब डेव में भी अगर डेप्थ ले रहे हो तो ऑब्वियसली टाइम लेगा, बट थोड़ा कम टाइम में हो जाता है, DSA टाइम लेता है, सो DSS CP स्टार्ट अर्ली। ठीक है। और हाउ टू यूज मतलब कॉलेज टाइम वाइजली, मतलब कैसे चीजें करें कि हाई पिंग जॉब हो जाए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यार में? कॉलेज तो डिपेंड्स लॉट ऑन कॉलेज कि कितना ज्यादा लीनियंट है या कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है आपके अटेंडेंस और एग्जाम्स के लिए। हमारा कॉलेज थोड़ा ठीक था इस मामले में, सो हमारे पास तो टाइम होता था। सो बेसिकली ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो यार, मतलब अब जहां भी हो डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि मेरे यहाँ तो इतनी अटेंडेंस होती है अब मैं कैसे करूँ, अब अटेंडेंस होती है तो देन प्रोबेबली क्लासेस, या तो आप ध्यान से कर रहे हो क्लासेस तो ठीक है वहां पे सीखो, अगर क्लासेस नहीं कर रहे हो तो उसी टाइम को यूटिलाइज करो, एक प्रॉब्लम्स नोट करके लेते जाओ कॉपी पे बैठ के, तुम वही एटलीस्ट सॉल्व करो, कुछ करो, बट मतलब बी कंसिस्टेंट। और मेरा तो वही है कि मतलब मैं तो बहुत ज्यादा कॉन्टेस्ट बायस्ड आदमी हूँ कि कॉन्टेस्ट देते रहो चीज, मतलब अगर तुम डिसिप्लिन से कॉन्टेस्ट दे रहे हो आप सॉल्व कर रहे हो चीजें अपने आप हो जाएंगी, मतलब फिर तुम रेटिंग का लालच में करोगे पर करोगे, तो वो जरूरी है। तो जो हमारा फाइनल ईयर भी इंटरव्यूज के प्रिपेयर कर रहा है, जो मतलब ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जा रहा है, तो मतलब क्या कहना चाहोगे कि अगर कोई बंदा सीपी किया है तो उसको कहाँ फोकस करना चाहिए, अगर कोई डेवलपमेंट पे फोकस किया है या दोनों किया है, तुम क्या कहना चाहोगे इसके लिए कि क्या करना चाहिए उनको आगे अपने यार अपॉर्चुनिटी? फाइनल ईयर में थोड़ा तो टाइम कम रहता है, तो अगर आपने CP और DSA किया है तब तो आप अच्छे हो, मतलब देन यू आर गुड कि आपने मतलब मुश्किल पार्ट कर रखा है। फिर डेव तो आप फाइनल ईयर में ऑन द गो कर सकते हो, मतलब 3-4 महीने में जल्दी जल्दी। इन केस आप दूसरी कैटेगरी में लाई करते हो कि आपने डेव किया है और CP DSA नहीं किया है, तो इस पॉइंट पे आई विल से कि डोंट गेट इनटू CP, फिर आप पूरे फोकस से DSA करो, क्योंकि CP टाइम लेता है, फिर बहुत ज्यादा फोकस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर बेटर है कि फिर CP को छोड़ो, फिर DSA पे फोकस करो, स्टैंडर्ड चीजों को करो, स्टैंडर्ड शीट्स करो,
दैट इज एनफ। और उससे ज्यादा है मतलब अगेन वही चीज रिपीट करूंगा, परफेक्शन मत सीख करो, अप्लाई करो। मतलब बस अप्लाई करो। 4 जगह रिजेक्ट हो गए, तुम जितना सीख लोगे उतना तुम घर बैठ के 6 महीने में भी शायद नहीं सीखोगे। ये पॉइंट है, मतलब अप्लाई करते रहो रिगरसली, कहीं भी तुम्हें मिल रहा है अपॉर्चुनिटी अप्लाई करते रहो, और हाँ वेट करो कि अपॉर्चुनिटी मिले। अगर तुम हाई मतलब अच्छी कंपनी चाहते हो तो तुम्हें सीपी पे या फिर डीएसए पे अच्छे फोकस करना पड़ेगा विद प्रोजेक्ट। स्टार्टअप के लिए या तो आप प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक स्टैक्स रिएक्ट या फिर बैकएंड में नोड.जेएस ये सब चीजें, यार जावा ये आनी चाहिए, ठीक है फाइन। या तो बताओ मतलब रिज्यूमे अगर मतलब बनाते हैं हमारे जूनियर्स या फिर, तो कैसे उनको रखना चाहिए रिज्यूमे में, क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए? तूने बताया कि हर एक चीज पॉइंट को जानना चाहिए, लेकिन क्या मेंशन करना चाहिए उनको? पहली चीज तो यार कि मतलब क्रिस्प रखो। मतलब मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में मतलब लोग 4-4 5-5 पेज के रिज्यूमे बना देते हैं। मतलब अभी तो थोड़ी अवेयरनेस आ गई, ये लोग नहीं करते, बट मतलब स्टिल ये बहुत कॉमन है, तो वो तो बिल्कुल मत करो। स्टिक टू 1 पेज। मतलब एक पेज में बहुत कुछ डाल सकते हो। बहुत अगर ज्यादा ही काम कर लिया है तो मे बी 2 पेज, बट मतलब फिर भी मतलब 80-90% लोग के लिए एप्लीकेबल है। 1 पेज रेज्यूमे इज एनफ। तो मतलब पहले तो सिंगल पेज होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे पेज की लिमिट नहीं डालोगे तो आप बहुत कुछ डालोगे, फिर एचआर ढूंढता नहीं फिरेगा उसमें कि तुमने अच्छा क्या किया है। सेकंड, रोल से रिलेवेंट चीजें रखो। जो जॉब डिस्क्रिप्शन कह रहा है, अगर तुम्हें 4 टेक स्टैक आते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई 2 मेंशन है, तो कोशिश करो कि उन 2 के प्रोजेक्ट्स ज्यादा हाईलाइट करो, उन 2 का एक्सपीरियंस ज्यादा हाईलाइट करो। अब हाँ मतलब मैं तो जब एक बार मतलब जब मैं अप्लाई करता था बहुत ज्यादा, मैंने देखा कि टेक स्टैक से अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो रही हैं, तो मैंने तो मतलब 2-3 टेक स्टैक में मतलब प्रोजेक्ट्स बना रखे थे। और जहां पे मतलब मैं हर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ रेज्यूमे चेंज करता था एट वन पॉइंट, मतलब पीक में। ये इंपॉर्टेंट है अभी तो कि थोड़ा जॉब आलसी हो गए। डॉट इसको देख करके कि डीएसए फोकस बंदा मांग रहा है या हाँ। प्रोजेक्ट फोकस मांग रहा है, उसके हिसाब से तुम रिज्यूमे बना के रखो चीजों को, और डोंट लाई रिज्यूमे कि भाई कुछ ऐसे ही रख लो। तो निधीश, ऐसी कोई एडवाइस जो आपने अपने सीनियर से मिली थी जो आप देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? यार मोस्टली स्टैंडर्ड चीजें ही होती हैं, ऐसी कोई मैजिकल एडवाइस होती नहीं। सो सेम चीजें मतलब हर हर किसी से सुना था कि डीएसए कर लो, प्रोजेक्ट्स कर लो, सीएस फंडामेंटल्स कर लो, कम्युनिकेशन ठीक कर लो, प्रोजेक्ट्स बना लो। सो यही 4-5 चीजें हैं यार। मतलब कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। हाँ मैंने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा था कि लोग थोड़ा बटे रहते हैं मोस्टली, कि कोई कहता है नहीं डेव इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है नहीं डीएसए इंपॉर्टेंट है। तो वो जरूर मतलब एक अच्छी एडवाइस मिली थी कि दोनों करो। मतलब ये मेरे एक भैया है मोस्टली, सो मैं उन्हीं को रीच आउट करता था फॉर मेंटरशिप। तो उनका मतलब उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था भाई दोनों करो। तो सो दैट वाज समथिंग गुड, कि मतलब एटलीस्ट मैं उस डिबेट में कभी नहीं पड़ा कि डेव अच्छा है या डीएसए अच्छा है। तो दैट हेल्प। और हाँ यार यही है मोस्टली। और सेकंड चीज मेरी साइड से अगर कुछ लेना हो तो ये कि मतलब कोल्ड मेलिंग मतलब वर्क्स। तुमको हर मेल का रिप्लाई नहीं आएगा, पर तुम 500 मेल करोगे तो शायद 10 का आ जाए। 10 चांस में शायद 2 कन्वर्ट हो जाए। तो वो तो बिल्कुल करना है। तो दैट हेल्प्स। ऐसी कोई मतलब अगर 3 पॉइंट पूछे जाए कि आपने मतलब जिसको बताओगे कि आपने किया जिसकी वजह से आप यहाँ पर हो, 3 पॉइंट आप क्या बता सकते हो, 3 वर्ड या 3 सेंटेंस? यार ओके थोड़ा सोचता हूँ। ठीक है। एक तो पक्का कॉन्टेस्ट होगा, बिकॉज कॉन्टेस्ट जरूर। दूसरा सेकंड कोल्ड मेलिंग, क्योंकि पहले इंटर्नशिप से उससे मिली थी, अगर वो नहीं होता तो मे बी फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। सो कोल्ड मेलिंग एंड वो ऐसा नहीं कि एक मेल किया आ गया, मतलब आई डिड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो एक हेल्प किया। एंड थर्ड यार की मतलब आई वॉज थर्ड चीज मतलब कि ये होनी चाहिए कि मतलब आप एनालाइज करो जहां भी फेल हो रहे हो, बीट कॉन्टेस्ट क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, बीट इंटरव्यूज कि क्यों रिजेक्ट हो गए। तो बेटर है कि एनालाइज करो, वैसे वाले चीजों में मत जाओ। जैसे बहुत सारे लोग मतलब फिर थोड़े ब्लेम गेम में चले जाते हैं कि अरे यार वो टीयर 1 कॉलेज से है, उसको मेरे से कम आता है, हो गया। अरे तो उसने मेहनत करी है तो वो टीयर 1 कॉलेज में है, तो मतलब इट्स वो सब डिबेट में नहीं जाना एक्सक्यूजेस वाले की मतलब ये हुआ होता वो हुआ। या फिर बहुत लोग डाइवर्सिटी हायरिंग के पीछे ही पड़े रहते हैं कि अरे उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो वो चीजें रहेंगी, मतलब यू फोकस ऑन योरसेल्फ। तो तीसरा वो कि मतलब फीडबैक्स को पॉजिटिवली लो, मतलब क्या क्या गलत है, वर्क ऑन दैट। सो तो या यानी कह सकते हैं कॉन्टेस्ट, और आपने मतलब चीजों को ध्यान नहीं दिया, बस फोकस किया अपने आप, जो आपने मतलब गोल पे फोकस किया कि जो चीजें लोग बोल रहे हैं उससे बता, जो आपको पता है उससे काम करो। और तीसरा फीडबैक पे काम करना कि अगर कुछ ही फीडबैक आता है तो उसको पॉजिटिव लेकर के उसको इम्प्रूव करना।
तो Yes. समझ सकते हैं आप, तीनों पॉइंट देख सकते हैं कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है, क्या आपके लिए जर्नी हो सकती है आगे। आप कहीं अगर फेस कर रहे हो डिफिकल्टी, स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो इन चीज़ों को देखो, मतलब कि यार आपके सीनियर्स किस तरह से आगे बढ़े, और आप किस फेस में हो सकता हो किसी सीनियर के साथ फेस अपना मैच कर रहा हो कि उनकी तरह आप भी हो। तो फोकस करो अपने चीज़ों पे। तो थैंक यू दिस फॉर योर डिस्कशन, Thanks, एंड Satyam. थैंक यू एवरीवन। So subscribe to See you. Logicworks, and we will upload these kind of videos and technical content opportunities in upcoming days. Thank you. चलो, bye bye. Bye. और बताओ नील साहब।